یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں شیخ تجمل۔ پہلے ایک نظر خاص خبروں کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میک ان انڈیا تصور کے مثبت پہلوؤں کو کیا ویبینار کے دوران اجاگر۔ کہا اس نظریے نے بھارت کو عالمی سطح پر دی ایک نئی پہچان۔ جموں کشمیر حکومت نے مختلف اسامیوں کے بھرتی عمل کو مزید شفاف اور جواب دہ بنانے کے لیے کیے کئی اقدامات۔ سرکار کے مطابق دوسرے مرحلے میں 12,000 سے زائد اسامیوں کو کیا جا رہا ہے ریفر۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کووڈ صورتحال میں آ رہی ہے نمایاں بہتری۔ قومی سطح کی صحتیابی شرح بڑھ کر ہو گئی 98.62%۔ اور جنگلی حیات کا عالمی دن آج۔ جنگلی جانوروں کو تحفظ دینے اور جنگلات کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت پر زور۔ خبروں کی تفصیل سے قبل یہ پیغام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کووڈ صورتحال رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی ہے۔ تاہم ایسے میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ چوکس رہیں اور جلد از جلد کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں۔ 15 سے 18 برس تک عمر کے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگوانے کے لیے آمادہ کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے ان 3 آسان اقدامات پر عمل کریں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ و چہرہ صاف رکھنے کی طرف خاص توجہ دیں۔ اس کے علاوہ کووڈ سے متعلق کسی بھی جانکاری اور رہنمائی کے لیے قومی ہیلپ لائن نمبر 011239780046 اور 1075 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ میک ان انڈیا تصور میں لاتعداد مواقع موجود ہیں اور اب پوری دنیا بھارت کو پیداواریت کے ایک پاور ہاؤس کے نظریے سے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کا میک ان انڈیا تصور ملک کو دنیا کے سامنے اپنی بے مثال صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دنیا کے لیے میک ان انڈیا سے متعلق ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں تمام شراکت داروں کے توقعات کے مطابق ایک مستحکم مینوفیکچرنگ بنیاد تیار کرنے کی ضمن میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیکٹر ملک کے GDP کے 15% پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے مرکزی بجٹ میں آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا کے حوالے سے لیے گئے فیصلے صنعت کاری کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کئی مسائل حل کرنے کے بعد اب بھارت کے پیداواری سفر میں کافی آسانی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ وبا کے دوران سپلائی چین متاثر ہوئی ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی منظرنامے پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال میں میک ان انڈیا کا تصور کافی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا اب ماحولیاتی اعتبار سے حساس ہوتی جا رہی ہے، لہذا ملک میں تیار کی جانے والی چیزوں کا ماحولیات پر کم اثر پڑنا چاہیے۔ انہوں نے چیزیں تیار کرنے کے دوران معیار اور مقدار دونوں کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج انڈین ایئر فورس اور دیگر کمپنیوں کی 19 پروازوں کے ذریعے 3,726 بھارتی شہریوں کو یوکرین کے ہمسایہ ممالک سے وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ کئی ٹویٹس میں شہری ہوابازی کے وزیر جوتی رادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ انڈین ایئر فورس، ایئر انڈیا اور انڈیگو کی 8 پروازیں آپریشن گنگا کے تحت بوچارسٹ اور 5 پروازیں بدھاپیسٹ سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 پروازیں زیسزو، 2 پروازیں سوسیوا اور 1 پرواز کوئس سے بھارت آ رہی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے مختلف اسامیوں پر امیدواروں کی تعیناتی کے عمل میں شفافیت اور جواب دہی لانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ حکومت نے سرکاری نوکریوں کے لیے امیدواروں کے انتخاب میں میرٹ اور قابلیت کو تقویت بخشنے کے لیے بھرتی عمل میں کئی لازمی ترامیم کی ہیں۔ سرکار کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ JKPSC اور JKSSRB کو ریکارڈ تعداد میں اسامیاں ریفر کرنے کے علاوہ تمام اسامیوں کی سلیکشن کے لیے شفافیت کو کلیدی اہمیت دینے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ حال ہی میں درجہ چہارم کی لگ بھگ 10,000 اسامیاں تیز تر بنیادوں پر پر کرنا UT انتظامیہ کے اصلاحات کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں پچھلے 18 مہینوں کے دوران 11,000 اسامیاں پر کی گئیں اور 20,323 اسامیاں SSB کو ریفر کی گئیں، جبکہ دوسرے مرحلے کے تحت 12,379 اسامیاں
रेफर की जा रही हैं। प्रेस नोट में मजीद कहा गया है कि हुकूमत तमाम महकमों में खाली पड़ी असामियों की निशानदेही कर रही है। इसके अलावा तमाम महकमों में असामियों को पुर करने का काम JKSSB को सौंपा गया है ताकि शफाफियत और यकसानियत को यकीनी बनाया जा सके। अलावा अजी योग्यता से रोजगार तक एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से हमकिनार कराना है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में डिजिलॉकर और उमंग से मुतल्लिक एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। यह वर्कशॉप जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के इश्तराक से किया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने डिजिटल खिदमात के फवाइद को उजागर करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो इन खिदमात से इस्तिफादा करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त आम लोगों के लिए 173 खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब हैं जबकि दीगर खिदमात को इस निज़ाम के साथ जोड़ा जा रहा है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मुल्क में कोविड सूरत-हाल लगातार बेहतर हो रही है और अब सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद 69,392 तक पहुंच गई है। सेहत वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 15,000 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 6,583 नए मरीजों की निशानदेही भी हुई है। कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 98.62% हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी कोविड सूरत हाल रोज अफजों बेहतर हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 110 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं और अब यूटी में सरगर्म मामलात की तादाद 463 रह गई है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 46 कोविड मरीजों की निशानदेही हुई है। जंगलात और जंगली हयात को इंसानी जिंदगी की बेहतरी और बका के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने में कलीदी हैसियत हासिल है। ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं है कि जम्मू कश्मीर को कुदरत ने जंगलात और जंगली जानवरों के बेपनाह वसाइल से मालामाल किया है और ये वसाइल यहाँ की खूबसूरती और जाज़बियत को मजीद दोबाला करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। 3 मार्च को हर बरस जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जाता है। यह दिन मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आम लोगों में जंगलात और जंगली जानवरों की अहमियत और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जामे बेदारी पैदा की जा सके। जम्मू कश्मीर में जंगलात के दायरे को वुसअत देने और जंगली जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के लिए इंतजामिया की तरफ से खातिर ख्वाह इक़दाम किए जा रहे हैं जिनके मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की अहमियत और जंगली हयात के वसाइल के बारे में जब शोबे खबर ने रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर राशिद याहिया नक्काश के साथ बात की तो उन्होंने कहा, ये ग्लोबल लेवल पे मनाया जा रहा है। 2013 में जो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की थी तो ये प्रोक्लेम किया गया लेकिन इसी डेट 3 मार्च जो है इसको हम कमेमोरेट करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। तो इस साल का जो थीम इन्होंने रखा था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो कश्मीर में क्या है अभी सूरत हाल हमारे वाइल्ड लाइफ की, हम आगे जा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा जो दासीगाम है इसमें एक एनिमल है जो कि एक रेगुलर स्पीशीज है जिसको ग्लोबली कहीं नहीं है, सिर्फ दासीगाम में है और कुछ एक पॉपुलेशन काल में हो या वांगत में है जिसको हम हांगुल के नाम से जानते हैं। वो इम्पोर्टेंट स्पीशीज, वो कंजर्वेशन सिंबल है, वो ड्यूटी एनिमल। हम वाइल्ड लाइफ को तभी बचा सकते हैं जब हमें लोकल सपोर्ट होगा और उसके लिए जो हमारी फ्रिंज कम्युनिटीज हैं वो हमारे साथ साना बचाना काम करे और उनके लाइवलीहुड के लिए हम काम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर आर भटनागर ने आज जम्मू में रोड सेफ्टी काउंसिल की 8वीं मीटिंग की सदारत करते हुए ट्रांसपोर्ट महकमे पर जोर दिया कि वो यूटी में पेश आने वाले सड़क हादसात की असल वजूहात का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने और मुतल्लिका एजेंसियों की तरफ से कवानीन की अमलावरी से काफी हद तक ट्रैफिक से जुड़े मसाइल का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी इकदामात की अमलावरी के लिए हुकूमत के मुनसिफाना और बरवक्त तसर्रुफ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि हादसात को रोकने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर हाईटेक कैमरे नस्ब किए जाने चाहिए। मुशीर मौसूफ को इस मौके पर बताया गया कि पिछली एक दहाई के दौरान 22 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर की गईं और इसके बरक्स सड़क हादसात में साल दर साल कमी रोनमा हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडोया के साथ मुलाकात की और उनके साथ सिक्किम सोरा और दीगर तिबी इदारों को दरपेश चैलेंजों के बारे में उन्हें आगाह किया।
उन्होंने मरकजी वजीर से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के तमाम तिब्बी इदारों को आला मय्यार के बुनियादी ढांचे और अफरादी कुव्वत से लैस किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के मरीजों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी उमूर पर तबादुल ख्याल किया गया। सदर मौसूफ ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर लोगों के साथ राबते में रहें और उनकी बहबूदी के कामों को अमलाने में सरगर्म रोल अदा करें। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज बडगाम का दौरा करके वहां रिंग रोड प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो काम में सुरत लाएं ताकि प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। कुलगाम इंतजामिया ने कल शाम कलपोरा कुलगाम में मारे गए पंच के लवाहिकीन के लिए 1 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया वागुजार की है। इस सिलसिले में डीसी कुलगाम की हिदायत पर अफसरों की एक टीम ने 1 लाख रुपए का चेक मुतासरा कुंबे को पेश किया। फील्ड आउटरीच ब्यूरो की तरफ से आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में ड्रग एडिक्शन, पोषण माह और आयुष्मान भारत पर एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशीली अद्वियात से दूर रहें और समाज को इस बिद्दत से पाक करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। पीआईबी श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने कहा कि नौजवानों को नशीली अद्वियात से छुटकारा दिलाने में मजहबी लीडर, असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी अहम रोल अदा कर सकते हैं। डाइट बीरवा की तरफ से आज डाइट कम्प्लेक्स में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें जिले के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 50 फिजिकल एजुकेशन असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर डाइट बीरवा के प्रिंसिपल और दीगर मुकर्रिरीन ने तलबा की फिटनेस और बेहतर जहनी सेहत की अहमियत को उजागर किया। वादी के एक बुलंद पाया वली हजरत सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में खतमातुल मौज़ूमात की सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्तान आलिया वाक़ा नरपरिस्तान फतेह कदल में मुनक्कद हुई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी। ताहम मुसाफिरों से कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से शाहराह की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करें। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।